डेप्रिसिएशन प्रोविजन एंड रिजर्व्स, मूल्यह्रास आयोजन एवं संचय, इसके 8वें भाग में आपका पुनः स्वागत। अभी हम अध्ययन कर रहे हैं स्पेशल अकाउंटिंग प्रॉब्लम्स रिलेटिंग टू डेप्रिसिएशन, मूल्यह्रास के लेखांकन से संबंधित कुछ विशिष्ट समस्याओं के बारे में। The special accounting problems relating to depreciation. Next problem is revision of the estimated useful life of property, plant and equipment. विशिष्ट लेखांकन समस्याएं जो मूल्यह्रास से संबंधित है, उनमें अगली समस्या है ह्रास योग्य संपत्ति, संयंत्र एवं मशीनों के अनुमानित उपयोगी जीवन का संशोधन। The residual value and the useful life of an asset should be reviewed at least at each financial year end, and if expectations differ from previous estimates, the change or changes should be accounted for as a change in an accounting estimate in accordance with accounting standards. ह्रासमान संपत्तियों के उपयोगी जीवन की हर वित्तीय वर्ष के अंत में समीक्षा होनी चाहिए तथा उसमें आए परिवर्तनों के लेखांकन अनुमान लेखांकन मानदंडों द्वारा तय किए जाने चाहिए। Whenever there is a revision in the estimated useful life of the asset, the unamortized depreciable amount should be charged over the revised remaining estimated useful life of the asset. जब भी संपत्ति के अनुमानित उपयोगी जीवन में संशोधन होता है तो अनापलिखित ह्रास योग्य राशि संपत्ति के संशोधित शेष अनुमानित उपयोगी जीवन के दौरान संपत्ति पर चार्ज की जानी चाहिए। Now let us take an example. A machine costing rupees 6 lakh is depreciated on a straight line basis. Assuming 10 years working life and nil residual value for 3 years, the estimate of remaining useful life after third year was reassessed at 5 years. Calculate depreciation for the fourth year. एक मशीन 6 लाख रुपए की लागत पर खरीदी गई, जिस पर सीधी रेखा पद्धति से ह्रास लगाया जाता है। उसके 10 वर्ष के जीवन का अनुमान लगाते हुए और शून्य अवशेष मूल्य के साथ फॉर 3 ईयर्स 3 सालों तक ऐसा किया जाता रहा। तीसरे वर्ष के अंत में जब उसके जीवन का पुनः मूल्यांकन किया गया तो यह पाया कि अब उसका अनुमानित शेष जीवन काल केवल 5 वर्ष रहा है। इसे ध्यान में रखते हुए आप फोर्थ ईयर का चौथे साल का मूल्यह्रास की गणना करके बताइए। डेप्रिसिएशन पर ईयर, प्रतिवर्ष चार्ज किया जाने वाला मूल्यह्रास 6 lakh upon 10 is equal to 60,000. Depreciation on straight line method charged for 3 years, 60,000 into 3 that is equal to 1,80,000. 3 वर्षों तक सरल लेखा विधि से लगाया गया मूल्यह्रास 60,000 इंटू 3 1,80,000. बुक वैल्यू ऑफ द मशीन एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर, तीसरे वर्ष के अंत में मशीन का पुस्तकीय मूल्य 6 लाख माइनस 1,80,000 बराबर 4,20,000 रुपये, 4,20,000. नाउ रिमेनिंग यूजफुल लाइफ एज पर प्रीवियस एस्टिमेट इज इक्वल टू 7 years and remaining useful life as per revised estimate is equal to 5 years.
क्योंकि अनुमानित जीवन काल में अब परिवर्तन हो गया है। अगर पुराने अनुमान का ध्यान रखें तो वह 7 वर्ष था, लेकिन अब यह 5 वर्ष ही रह गया है, जिसके आधार पर नई मूल्यह्रास राशि की गणना करनी पड़ेगी और वो होगी, अब हमारा पुस्तक मूल्य है 4,20,000 रुपये और 5 वर्ष का अनुमानित जीवन काल है। 4,20,000 अपॉन 5 84,000 यानी 84,000 रुपये प्रति वर्ष से अब हम 4th ईयर और आने वाले वर्षों में 5 वर्षों तक मूल्यह्रास लगाएंगे। The next special accounting problem relating to depreciation is revaluation of property, plant and equipment। मूल्यह्रास से संबंधित विशिष्ट लेखांकन समस्याओं में अगली समस्या है हास योग्य संपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन। If there is an upward revision in the value of asset for the first time, then the amount of appreciation is debited to assets account and credited to revaluation reserve account. If there is downward revision in the value of asset, then profit and loss account is debited and asset account is credited. If an asset was earlier revalued downward and later on revalued upward, then the appreciation to the extent of earlier downfall is credited to profit and loss account. If an asset was earlier revalued upward and then later on it was revalued downward, then the downfall to the extent of earlier appreciation is debited to revaluation reserve account. In case the revaluation has a material effect on the amount of depreciation, the same should be disclosed separately in the year in which revaluation is carried out. जब भी हास योग्य संपत्ति का पुनर्मूल्यांकन किया जाता है तो हास संपत्ति के शेष अनुमानित उपयोगी जीवन के आधार पर पुनर्मूल्यांकित राशि पर लगाया जाना चाहिए। यदि संपत्ति के मूल्य में ऊर्ध्वगामी संशोधन होता है तो हास की राशि को संपत्ति खाते में डेबिट किया जाता है तथा पुनर्मूल्यांकन खाते में क्रेडिट किया जाता है। यदि संपत्ति के मूल्य में अधोगामी संशोधन होता है तो लाभ हानि खाते को डेबिट तथा संपत्ति खाते को क्रेडिट किया जाता है। यदि किसी संपत्ति को पहले ऊपर की ओर पुनर्मूल्यांकित किया गया था तथा बाद में इसको नीचे की ओर पुनर्मूल्यांकित किया जाता है तो पहली वृद्धि की मात्रा तक गिरावट को रिवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट में डेबिट किया जाएगा और यदि पुनर्मूल्यांकन का हास की राशि पर सारवान प्रभाव होता है तो इसकी भी उसी वर्ष में पृथकतः अभिव्यक्ति की जानी चाहिए जिसमें पुनर्मूल्यांकन किया जाता है। साधारण शब्दों में पहली बार जब पुनर्मूल्यांकन किया जाए और लाभ हो तो उसे रिवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे, हानि हो तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करेंगे। उसी संपत्ति का जब बाद में पुनर्मूल्यांकन किया जाता है जिसका पहले लाभ हुआ और अब हानि हो रही है तो पुराने लाभ की मात्रा तक हानि को रिवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट में ही हस्तांतरित करेंगे और पुराने रिवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट को क्लोज करने का प्रयास करेंगे और शेष हानि को P&L अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। यदि किसी संपत्ति में पहले हानि हो चुकी है जिसे P&L अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जा चुका है और अब अगर उसमें लाभ हो रहा है तो पुरानी हानि जितनी हमने P&L अकाउंट में ट्रांसफ़र की थी उस सीमा तक लाभ को अब P&L में ट्रांसफ़र करेंगे और अतिरिक्त लाभ को हम रिवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट में हस्तांतरित करेंगे। आइए अब हम इसे एक चार्ट की सहायता से समझने का प्रयास करते हैं। रिवैल्यूएशन पुनर्मूल्यांकन, इंक्रीज वृद्धि, डिक्रीज कमी, यानी पुनर्मूल्यांकन के फलस्वरूप संपत्ति के मूल्य में वृद्धि होती है या संपत्ति के मूल्य में कमी आती है। वृद्धि रिवैल्यूएशन सरप्लस शीर्षक के अंतर्गत ओनर्स इंटरेस्ट को प्रत्यक्षतः क्रेडिट, credited directly to
ओनर्स इंटरेस्ट अंडर द हेडिंग ऑफ रिवैल्यूएशन सरप्लस। इसका अर्थ है जब वृद्धि हुई है तो उसे रीवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे और यह एक नया रिजर्व क्रिएट होने के कारण मालिकों का, ओनर्स का इंटरेस्ट उसमें डायरेक्ट इंक्रीज हो जाएगा। एक्सेप्शन, व्हेन इट इज सब्सिक्वेंट इंक्रीज वेयर देयर वाज इनिशियली डिक्रीज। अपवाद, जब यह तदोपरांत वृद्धि हो जबकि प्रारंभिक कमी रह चुकी हो, यानी पहले एक बार उस संपत्ति में के मूल्य में कमी आई थी और अब वृद्धि हो रही है। रिकॉग्निशन इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू द एक्सटेंट दैट इट रिवर्सेज a revaluation decrease of the same asset previously recognized in the statement of profit and loss। लाभ हानि के विवरण में उस सीमा तक मान्य जिस तक इसको लाभ हानि के विवरण में पहले उसी तरह की पुनर्मूल्यांकन कमी को उलटते हुए मान्यता दी गई थी। यानी जितना हानि हम पहले P&L अकाउंट में डेबिट कर चुके हैं उतना वृद्धि के फलस्वरूप लाभ पुनः P&L अकाउंट में क्रेडिट होगा और शेष अगर कोई लाभ बचता है तो वह रीवैल्यूएशन सरप्लस माना जाएगा। लगभग ऐसा ही नियम डिक्रीज यानी कमी पर लागू होगा। चार्ज टू दी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जब पहली बार पुनर्मूल्यांकन के फलस्वरूप कमी दृष्टिगोचर होती है तो उसे लाभ हानि के विवरण के प्रति चार्ज किया जाता है, यानी P&L अकाउंट में डेबिट किया जाता है। एक्सेप्शन, इसका अपवाद है, व्हेन इट इज सब्सिक्वेंट डिक्रीज इनिशियली इंक्रीज, जब यह बाद में कमी होती है जबकि पहले इसमें वृद्धि हो चुकी हो, यानी इसको तदोपरांत कमी जबकि प्रारंभिक वृद्धि हो चुकी है के नाम से बुलाएंगे। डिक्रीज शुड बी owners debited directly to owners interest under the heading of revaluation surplus to the extent of any credit balance existing in the revaluation surplus in respect of that asset। कमी को उस संपत्ति के संबंध में रिवैल्यूएशन सरप्लस में विद्यमान किसी क्रेडिट शेष की सीमा तक रिवैल्यूएशन सरप्लस शीर्षक के अंतर्गत ओनर्स इंटरेस्ट को प्रत्यक्षतः डेबिट किया जाना चाहिए, यानी जितनी राशि पहले लाभ होने वृद्धि होने के फलस्वरूप रिवैल्यूएशन रिजर्व में ट्रांसफ़र की थी उस सीमा तक हानि को रिवैल्यूएशन रिजर्व से ही सेट ऑफ करेंगे और शेष अगर अतिरिक्त हानि होती है तो उसे P&L अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाएगा। आइए अब हम इसे एक एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं। A machine of cost ₹12 lakh is depreciated straight line, assuming 10-year working life and zero residual value for 3 years. At the end of third year, the machine was revalued upwards by ₹60,000. The remaining useful life was reassessed at 9 years. Calculate depreciation for the fourth year। एक मशीन जिसे 12 लाख रुपए में खरीदा गया और उसकी 10 साल की जीवन काल माना गया शून्य अवशेष मूल्य के साथ और मूल्यह्रास लगाना है सरल रेखा विधि से। तीसरे वर्ष के अंत में मशीन का रिवैल्यूएशन किया गया जिसके फलस्वरूप 60,000 रुपये की मूल्य वृद्धि पाई गई और उसका शेष अनुमानित जीवन काल भी पुनः निर्धारित किया गया जो 9 वर्ष है। फोर्थ ईयर का यानी चौथे वर्ष का मूल्यह्रास आपको ज्ञात करना है। डेप्रिसिएशन पर ईयर चार्ज फॉर 3 years, 12 lakh upon 10, 1,20,000 for the first year. Similarly for 3 years it is going to be 3,60,000। WDV of the machine at the end of third year, तीसरे वर्ष के अंत में संपत्ति का
रिटर्न डाउन वैल्यू यानी अवशेष मूल्य पुस्तकों में 12 लाख माइनस 3,60,000, 8,40,000 रुपये। डेप्रिसिएबल अमाउंट आफ्टर रिवैल्यूएशन, जब संपत्ति का पुनर्मूल्यांकन कर लिया गया तो अब संपत्ति का मूल्य हो जाएगा 60,000 रुपये की वृद्धि के पश्चात 8,40,000 रुपये प्लस 60,000 रुपये 9 लाख रुपये। संपत्ति की पुरानी विधि से अनुमानित जीवन काल बचा है 7 वर्ष, लेकिन अब इसे हमें उपयोग में नहीं लेना है। अब इसका नया अनुमानित जीवन है 9 वर्ष, तो 9 लाख पर 9 वर्ष के लिए प्रति वर्ष 1 लाख रुपये का मूल्यह्रास अब लगाया जाएगा। यहाँ 60,000 रुपये की जो मूल्य में वृद्धि हुई है उसको रीवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट में या रीवैल्यूएशन सरप्लस अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाएगा। यहाँ पर ये एक एग्ज़ाम्पल आपको गलती से दे दिया गया है। इसे अगली स्लाइड में जब हम भाग 9 पढ़ेंगे और जब हम प्रोविज़न फॉर रिपेयर्स एंड रिन्यूअल सीख चुके होंगे तब इसे समझने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।